ਇਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਬਦਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਤਲ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਹਿਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਅਮੂਮੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਮੋਮਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੁਕਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਫਾਫ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਸੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਠਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਤਨਦ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸकी ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਮਟੀਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਟੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? एक मिनट राजा साहब कोई इल्मी बात करें, जो इख्तलाफात हैं उन पर बात करें, बंदों के ऊपर कर दिया फला, ये क्या फायदा है? ये जो आप जबरदस्ती मोरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं, इसमें कोई वजन नहीं है। वो आमद जट है। राजा साहब आप बेमकसद बातें ना करें, क्या फायदा है इनसे? जज्जा साहब सुने मेरी बात। अमन जट है आपकी जमात का बंदा, शायद वो ये बात सुन रहा होगा यार, वो उसके साथ बात करना, यहाँ पर आपके सामने टोक मास्टर बैठे हैं, हम मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, उनसे बात करें, सही हिसाब से बात करें, उनसे बात करें। ये क्या है? आप मेरी बात सुन लें। कल की खबर, अफगानी से पूछ लेने दें कि कल की खबर ये है, मेरी बात सुन लें। कल की खबर ये है कि एक मदरसे के अंदर कल मुजरा हुआ 2 घंटे, उसकी ये वीडियो टिकटॉक पे भी चल रही है और खबरों में भी चल रही है। ये और यार गलत हुआ है, 2 घंटे मुजरा हुआ एक मदरसे के अंदर। चंगेज खान साहब जे मुजरा होया देखिए उन्होंने पुलिस ने फड़िया नहीं, कोई केस वगैरह कख नहीं होया, जेड़ा गलती करे तां सजा लंबे दी है, गलती नहीं मार लियो। मीडिया अंदर गया वे इस तरह दे फिर
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਅਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਖਿਲਾਫਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਮਕਸਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ भाई आप वो बात वो छोड़ दें, वो अपने अपने मामले हैं, जिसके अपने मामले वो अपने मामले निबेड़ लेंगे। या पाकिस्तान में 1 करोड़ जो है ऐसे केस पड़े हुए हैं जिसका आप वकील होते हुए भी सिर्फ सर लचकाया हुआ है, आपने वकील होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, वरना आपने किया है। जज्जा साहब सुने मेरी बात, मौजूद मिल गया और यही टॉपिक मिल गया, अटैक आप जितने मर्जी कर लें, बात सुने मेरी, मैं आपको बताता हूँ। या तो ये बताए ना आप बेमकसद बात ना करें, दीनी बात करनी है तो करें। नहीं आप ये खत्म नबूवत के ऊपर बात करें, आप क्या बात करना चाहते हैं खत्म नबूवत के ऊपर कर सकते हैं कोई? और ठहर जाए यार एक मिनट, या तो ये कह देना शंडी शाह आवारा बातें ना किया करें, आप वकील हैं, आप अपनी टाई की थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लें, काले कोट की रिस्पेक्ट रख लें, या वकील जैसे वकील पाकिस्तान में ऐसे दूसरे वकीलों की तरह बनना है आपने। एक ही दुनिया में आपको केस नजर आया है, मैं तुम्हारी बहनें हजारों रोती दिखाता हूँ, वो रोती हैं, तुम्हें रोती हैं कि तुम मेरा आकर केस लड़ो। बाप के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, इमरान अहमद खान के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, जितने जनाकार हैं उन सबको जमात से निकाल दिया गया है, फिर तो मैं आपकी बात मानूंगा। अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो हाई इन्फ्लुएंस लोग हैं, आपकी जमात के अंदर सिर्फ कानून जो है वो गरीब के लिए है, वो एक आम कादियानी के लिए जो चंदा नहीं देता। जो ये जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं इनके खिलाफ कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं होता। और बात आप शफाफ होने की कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी जमात में राजा साहब राजा साहब जी आपका दिमाग जो है ना सिर्फ तुम्हें कमेंट का है, बस उधर ही खड़ा है। आप ये बताएं मुझे जो इस्लामी तालीमात भी हो रही है, इस्लाम एविडेंस मुझे आप एविडेंस दें कि हमारी जमात ने ये एक्शन किया है शंडी शाह के खिलाफ, ये एक्शन किया है निदा नासर के बाप के खिलाफ। यार ये जज्जा साहब क्यों उतारा है जी? पीर साहब मौजूद हैं आप? पीर अस्कानी साहब नहीं, टॉक मास्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये जज्जा साहब को क्यों उतार दिया है भाई? मैंने नहीं कंट्रोल तो कोई कर नहीं सकता, फिर एक ही हाल है ना, मतलब 4 बंदे बात कर रहे हैं भाई, उन्होंने कोई गाली निकाली है क्या किया? नहीं, अब 4 बंदे बात कर रहे हैं, उनको बोला तो है कि सारे की करके बात बंदे करें। अभी जज्जा साहब भी बात कर रहे थे राजा भाई से, कौन से 4 बंदे बात कर रहे हैं? नहीं, ये देखे जज्जा आप क्या लिख रहा है पीर साहब, मैं तो ड्यू करा के बैठा हुआ था। हाँ जी, राजा साहब आ गए अपने जज्जा। बात यह है कि बड़ी इज्जत से एहतराम से मैं राजा साहब को कह रहा हूँ कि इस तरह के इल्जाम लगाने, इस तरह की बातें करनी, ये ठीक है, आप वकील हैं, आपका शोबा है। चले जजा साहब, वो अमर साहब आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, वो फिर आप वेट करें, ठीक हो गया? अभी मैं करेंगे क्या बात करनी? जजा साहब करें बात, खत्मे नबूवत के ऊपर कोई इल्मी बात करें, जो भी आपने इल्मी बात करनी है वो करें, उस पर बात हो। खत्मे नबूवत के ऊपर सबसे बड़ी इल्मी बात यह है कि मिर्जाइयों से यहाँ पर कोई बंदा पूछ लें, वो अपना खत्मे नबूवत के बारे में अकीदा बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी इल्मी बात यह है कि जो भी बंदा यहाँ है उसका सिर्फ इतना ही दावा होता है कि हमारा अकीदा यह है कि तुम्हारा मुसलमानों का अकीदा गलत है। बस पूछो भाई असल अकीदा तुम्हारा क्या है खत्मे नबूवत के बारे में, कोई यहाँ बयान नहीं कर सकता। इतनी बड़ी इल्मी बात कभी सुनी है आपने पहले? हमारा अकीदा वही है जो आपका अकीदा है। हेलो जी, अकीदा जी, हमारा अकीदा है कि सुनना जी, एक मिनट मास्टर साहब, मास्टर साहब ऐसे खड़े हैं ना, एक मिनट थोड़ा सब्र करके एक मिनट। भाई आपने कह दिया ना, आपने अपना अकीदा हमारे वाले कर दिया ना। हमारा अकीदा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद जितने लोगों ने नबूवत के दावे किए वो सब कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी समेत। हमारा ये अकीदा है। ये अकीदा कहाँ से लिया आपने?
जहां से भी लिया आपने, तो अपना अकीदा हमारे वाले कर दिया ना, जहां से भी लिया। आपने तो कर दिया, लेकिन आप तो बताए ना, आपने नबी रसूल कहाँ से ले लिया? बताया तो है, कुरान से लिया है। कुरान में तो नहीं ऐसा कुरान और हदीस। हाँ, कुरान और हमारे दीन का नाम कुरान और हदीस। पहले कुरान से बताएं, अव्वल दर्जा कुरान। क्यों कुरान से बताएं आपको? तो भाई जो आप कह रहे हैं तो आपने अकीदा बनाया है ना, तो मैंने अपना अकीदा आपके हवाले कर दिया और आपने अकीदा अपना बता दिया, और आपका अकीदा अब आपने जो बता दिया है वो इसका मतलब है कि आपने वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि आपने मेरे हवाले जो किया था, आपके हवाले जो मैंने किया है वो कुरान और हदीस से मिल जाए तो मेरा अकीदा जो है वो आपका और नहीं। अगर कुरान और हदीस से नहीं मिलता तो इसका मतलब यही है, सवाल करने का मतलब यही हम कह सकते हैं कि आप कुरान हदीस से बाहर हैं, आप बाहरों बाहर लाहौर जाते हैं, लेकिन वो कुरान जो है वो हदीस जो है उसको छोड़ लो ना। हाँ ठीक है, जाते हैं, कुरान और हदीस से बाहर है ना ये अकीदा जो हमारा है। आपका अकीदा क्या है? आपका अकीदा क्या है? आपका अपना अकीदा मान गए ना आप, आपका बाहर है। हमने बता दिया कि हमारा ये अकीदा है। आपका अपना अकीदा है, कुरान और हदीस का अकीदा नहीं है, ये आप मानते हैं। कुरान और हदीस के बाद बात कर लेंगे ना कि कुरान और हदीस का है कि नहीं है। क्यों बात करेंगे? आपका अकीदा है यार, आप दिन रात हमें रगड़ते हो। मेरी बात सुनिए, दिन रात हमारे खिलाफ आप बोलते हो, तो जब आपसे पूछा कि कुरान हदीस से अपना बात बता दें, अकीदा अपना। हाँ बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरी बात के बीच में नहीं बोलना। बात यह है कुरान पाक की आयतें, हमारा अकीदा कुरान और हदीस से है या कुरान और हदीस के बाहर है, इसका फैसला तो जब बात करेंगे तब। आपका अकीदा हमारे वाला है कि नहीं है, आप बताएं। आपने बात कर ली, सवाल किया है, हमारे वाला है आपका अकीदा कि नहीं है? मैंने अपना अकीदा आपके हवाले कर दिया और आपने बता दिया है कि आपका अकीदा यह है। मैं आपके अकीदे के पीछे चलना चाहता हूँ। नहीं, पीछे नहीं चलना, पीछे नहीं चलना। अगर पीछे चलना है, मैं झूठा हूं तो मैंने आप तो पीछे चलना है जनाब। भाई अगर पीछे चलना है मैंने तो अपना अकीदा आपके हवाले करके दिया और आपने अपना, अगर मेरे हवाले कर दिया है तो फिर इतराज किस बात का? आपके हवाले किया है ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान पाक से मुझे नहीं मिला, कुरान पाक से मिला, मुझे कुरान पाक से नहीं मिला। आप भाई कुरान पाक से अगर नहीं मिला तो आपने मेरे वाला अकीदा क्यों अपनाया? अगर तो नहीं आपके हवाले किया है ना, मैंने अपनाया नहीं। मेरे हवाले क्यों किया है? मेरा तो अकीदा कुरान पाक में है ही नहीं। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। आपका ये दावा सुने ना, सुने से ना, आपका ये दावा है कि मेरे वाला अकीदा कुरान पाक में है ही नहीं, तो आपने अपना अकीदा मेरे हवाले क्यों किया है? इसका मैंने आपके हवाले अपना अकीदा कर दिया ताकि आप मुसलमान हैं ना, तो मुझे आप काफिर कहते हैं। आपका अकीदा कुरान पाक से मिल जाएगा और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। भाई आज पहला वाकया होने लगा है, 125 साल से आपका अकीदा वो है हमारे वाला है। 125 साल 7500 साल सीधी बात करें, कुरान पाक से अपना अकीदा कौन सा है? मिर्जाई अपना अकीदा मेरे सामने बयान कर दे अपने कुरान पाक से और हदीस से। मास्टर साहब अगर ये हमारे सामने बैठकर अपना अकीदा, वरना मैं कहूंगा बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो। अली बंदे ना चुक थलियो बनाया हुआ गल होने लगी है, कोई बंदा ना थलियो चुक्या करो। मलक इमरान रहन दे, उत्ते आगे बहन दे। बात यह है जज्जा साहब, आपका अकीदा वो वाला है जो मेरा अकीदा है या अलग? पहले ये फैसला कर लें। मैंने अपना अकीदा आपके हवाले करके आपको कहा कि अकीदा बताएं, तो हमारा अकीदा जो भी हो, जब आपने हमारे हवाले कर दिया होना चाहिए मुसलमान। या तो मेरी बात सुनो ना, कुरान से नहीं है, कुरान से नहीं है तो आपने नहीं मानना ना। आपका ओ भाई कुरान से नहीं है, आपने नहीं माना, अपना बयान करो, अपना बयान करो। मैंने कहा ये मर जाएंगे, अपना अकीदा नहीं मेरे सामने बयान। मैं कहता हूँ आप मर जाओगे, अपना अकीदा पाकिस्तान मिर्जायत की मौत है, अपना अकीदा खत्मे नबूवत का बयान करना मिर्जायत की मौत है। करें तो बात बनेगी, आपको बयान करें। ये ऐसे अवारा बातें मैंने अकीदा बयान किया है कि मेरा अकीदा, मेरा सुन ले, खामोश खामोश, ये बात मैं साबित कर गया। हेलो ओ ध्यान ना करो जड़ा आमदा कीम राशद हर अब नहीं है। ओ स्पीकर म्यूट करके ना गल कर, स्पीकर म्यूट करके ना, माइक म्यूट करके गल कर। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अकीदा कुरान से हुआ या हदीस। ओ चुप तक करना, खामोश हो, खामोश खामोश, एक मिनट चुप करेगा कि नहीं? गल मनु गल कर, मैं तेन मौका देना गल करन दा। अकीदा जो है ओ भाई मैं गल करना ना, कुरान पाक से तो नहीं मिलेगा। हाँ, इनका अपना बनाया हुआ अकीदा है। बस होगी गल, हुण खामोश हो जा।
म्यूट कर ला। अपना अकीदा बताए हैं कुरान पाक हाँ से। बताना बताना बताना। बताएं। म्यूट कर ला, म्यूट म्यूट का बटन दबा। म्यूट ला ना, मेरी गल दे विच ना बोली, मैं तेरी गल सुन ली है ना। बोलो बोलो, सिर्फ तुसी आए को आयतां दा इन्हां नूं किड्डा शौक है। क्यों नहीं? आयत पेश करो साडे सामने, आयत पेश करो ते असीं ओहदे नाल तमाशा करिए। बगैर आए तो ना गल बन सकती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਨਾ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आयतां पेश करिए। आयत पेश करो। पहले आयत तो दलील होती है, पहले अपना कीदा बयान किया जाता है। मैंने अपना ये कीदा बयान किया है कि मेरा ये कीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे खातमन नबीयीन हैं, ऐसे आपने सिलसिला नबूवत का जो रास्ता है वो बंद किया है कि अब उनके बाद जो भी दावा करेगा वो कज़ाब और दज्जाल होगा। ये है मेरा कीदा। अगर आपका ये वाला कीदा है तो ठीक है, नहीं तो पहले अपना कीदा बयान करें, फिर देखें आयतें मिलती हैं कि हदीसें मिलती हैं कि तफसीरें मिलती हैं, क्या मिलता है, कहाँ से दलील मिलती है। मैंने आपको अपना कीदा आपको थमा दिया, आपके हवाले जब कर दिया है, तो फिर इसके आगे आप और क्या चाहते हैं? ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਔਰ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ। फिर देखो टाक मास्टर साहब, मैं इन्होंने पीछे चलना चाहना, ये अलामा साहब है ना, आपने बताया है फिर ना, वो हमें चीज नज़ीर कुरान को भाई, पूछना चाहते हैं कि आपका अकीदा क्या है। तो हम समझते हैं कि जी जज्जा साहब का भी यही अकीदा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आपका अकीदा वो हमारा अकीदा, दोनों के अकीदे बराबर हो गए। गल माशाल्लाह। अब तो इनको मिर्जा साहब को दज्जाल कह दें, मिर्जा साहब को दज्जाल कहें, मेरे सामने खुश हो गए एक बार कज़ाब और दज्जाल कहें। जो है वो कुरान पाक मेरे वाले कीदे पे अमल करें ना, फिर मैं आपको दलाल, मेरी बात सुनो ना ये बताते हैं, मैं इनके यार, गल तो सुनना जजा, या तो मेरे पीछे लग के मिर्जा साहब को दज्जाल और कज़ाब कहो, या फिर कहो कि ये कीदा तुम्हारा गलत है, असल कीदा ये है। दज्जाल का कज़ाब तो फिर आप उसको कहो ना जो जिसका अकीदा कुरान करीम से नहीं मिलता। आप भाई ना मिलता होगा तो छोड़ दो, उसका कीदा अपनाने की जरूरत क्या है। जिसका कुरान करीम से नहीं मिलता उस पर लानत भेजो, अपना कीदा बयान करो। दज्जाल कज़ाब कहना चाहिए यार, मुझे दज्जाल कहो, कज़ाब को अपना कीदा बयान करो, मुझे कज़ाब फिर कहो। आप माफी मांग लें कि आपने ये अकीदा गलत मैं बनाया। कहता हूं कि मेरा अकीदा कुरान से साबित नहीं होता होगा, आप उसके नहीं पीछे होता लगो ही ना। होगा, ऐसा आप नहीं अपना है, अकीदा कुरान की बयान बात करो नहीं ना। है। आप ये कहो, माफी मांग लो कि आपका अकीदा कुरान पाक से साबित नहीं होता। भाई साबित करना तो बाद की बात है, पहले तो ये अपना बात दावा नहीं, करते हैं अभी आपने ना। खुद कहा है कि जी जिस मेरा तरह- अकीदा तो नहीं साबित होता। आपकी जो दौर जिस तरह मैंने बताया है, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपका अकीदा जो है वो ओ, कुरान पाक चुप से कर जाना साबित होना है। होता है या नहीं? माफी बताता मांग लो, हूं। अगर नहीं होता तो आप कहो चुप कि कर। आपका अकीदा झूठा है। ठीक है, ठीक है, खामोश हो जाए, अपनी बारी में बात करनी है। बीच में ना रोला पाओगे, मैं माइक ऊंचा करके तो मैं आपकी आवाज भी नहीं निकलने दूंगा। बात ये है, कर लेंगे तो फिर क्या उसका फायदा कोई नहीं ना, उसका फायदा कोई नहीं ना। मैं नहीं चाहता ऊंची करनी, बारी बारी बात कर। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा अकीदा, आपने कहा भाई आपका भी अकीदा वही है जो हमारे वाला है। अब जो मैंने अकीदा पेश किया उस पर आपके इश्कालात हैं, आप कहते हो कि ये कुरान से साबित करो। अकीदा क्या है? मैंने कहा कि मेरा अकीदा वो है जो आपका है, आपके पीछे है, आपके हाथ में दे दिया। आपने खुद कहा कि आपके हाथ में दे दिया है। मैं आपने अगर दे दिया है, अगर दे दिया तो फिर इस पर सवाल क्यों करते हो? हाँ, तो फिर मैं जरूरी है ना कि देखूं कि वो है कुरान आज पाक तक में। पहले नहीं देखा। क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बता सकते? यार मैं बता सकता हूँ। बगैर देखे बगैर देखे मेरे वाले करते हैं अक्सर। बगैर जज्जा साहब उनका अकीदा जाने बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपका अकीदा वो मेरा अकीदा? हाँ जी, मैं उनके हवाले कर दिया ना, तो उन्होंने अपना अकीदा बता दिया। यही तो मैं जानना चाहता था। तो बता दिया तो अब आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आपने पहले ही दे दिया। जो उन्होंने बता दिया तो वो ठीक है, लेकिन उस पर ये तो मैं पूछ सकता हूँ कि ये कुरान करीम से है या हदीस से है या नहीं। वो बता रहे हैं कि जहाँ से भी है, गलत है, सही है, जो भी है यही यार अकीदा है। मैं देखो, एक आप टाक मास्टर साहब समझे नहीं, मैं एक बच्चे की तरह इनकी उंगली पकड़कर चला हूँ, इसलिए कि मैं इनसे ही सीखूं सब कुछ। क्या समझे हैं आप? मैंने इनको नहीं, वो जो अपने आप मुझे समझा रहे हैं ना, वो मेरी समझ में आएगा नहीं। मैं नहीं, आप चलो ठीक है, बहरहाल नहीं आएगा। लगाता हूँ। हाँ, कितनी आसान बात है, कितनी आसान बात है कि या तो हमारे वाला अपना लो या अपना बयान करो, उस पे दलाइल दोनों मैं अपने के दलाइल दूंगा, मैं कुरान से दलाइल दूंगा ना।
آپ اپنے کی دلائل دینا. میں نے آپ کا عقیدہ اپنا لیا اور پھر آپ کے یا اگر میری گل سنو نا, اگر دیکھ کے بغیر ہی اپنا لیا ہے, بغیر دلیل کے اپنا لیا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا, آپ علامہ ہیں. ہاں دے دیا نا, میرے ہاتھ میں دے دیا, میرے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پہلے پوچھ رہا ہوں علامہ صاحب کو قرآن پاک سے بھائی اگر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے تو نبی پاک کے بعد ان تمام مدعیان نبوت کو کذاب دجال کہو. آپ کا عقیدہ اگر ثابت ہو گیا قرآن پاک نہیں ثابت ہوتا, میری گل سنو نا, اگر ثبوت لینا ہے, اگر ثبوت لینا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم مطمئن نہیں ہو نا میرے عقیدے پر, میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے نا. ہاں تو میں آپ کا عقیدہ قرآن کریم سے دیکھنا چاہتا ہوں. رہن دو نا, قرآن کریم اور قرآن کریم تو میں پہلے ہی کہہ دینا کہ تینوں قرآن کریم پیش بھی کیتا, تو کہنا قرآن کریم تو نہیں ہے. چلو کرو ہاں والا تسی. میں کیوں کراں, کیوں نہیں, میں سوراں کے موتی کیوں پاواں. ہیلو ہاں مثل ہے نذیر صاحب تے اور ضرب المثل ہے سوراں کے موتی, جدن اے دیکھو ایدی طبیعت ایدی تربیت اے ضرب المثل ہے کہ سوراں کے موتی نہیں پائی دے. جدن اے بندہ لیکن گل ہے اپنا عقیدہ بیان کیوں نہیں کرتا, جیڑا مرزائیاں دا عقیدہ وہ کیوں نہیں بیان کرتے. مینوں اجازت دیو, اتنا ہی بڑا 10 منٹ رہ گیا نا, میں 2:30 بجے کام تے بھی پہنچنا. دڑکی نذیر صاحب پھر تانوں ملاں گے, میں پہنا جدوں مرضی ملے آواز مار کے آوے بغیر دسیوں چھپ کے نہ بوجھ لو نا قرآن پاک, تو تانوں پتہ چل جائے کہ تہاڈا اے عقیدہ ہے, اے قرآن کریم دی آیت ہے تہاڈا. مرزائی مر سکدے نے میرے سامنے بیٹھ کے اپنا عقیدہ بیان کرن تے میں اس مرزائی نوں مان جا. باندر کہو جو مرضی کہے, موت آ سکدی ہے مرزائیاں دی. اے جڑے اپنیاں براداں دے تے یب لگے نے نا کرنا, اس گل کرن لگے نے کہ اے سامنے بیٹھ کے گل نہیں کر سکدے ٹاک ماسٹر صاحب, یہ تاں اپنیاں براداں دے بیٹھے نے. اوکے جناب رکھا, انہاں نوں آکھو ساڈے سامنے بیان کرنے کی بندے کی زبان ہے یہ مرتے مر جائیں گے, یہ مرتے مر جائیں گے, ہمارے سامنے اپنا عقیدہ نہیں بیان کہتے ہیں, اور یہ دوسروں کو یہ اس طرح صرف اتنا جانتے ہیں, صرف اتنا جانتے ہیں آگے کہنا کہ اپنا عقیدہ قرآن سے میں ثابت کروں. ہم اس پہ نکتہ چینی کرتے رہیں, ہم اس پہ گالیاں دیتے رہیں قرآن کو, حدیث کو, یہ چاہتے ہیں. پھر میں اس ٹائم آ جاؤں گا, باقی ابھی میں اجازت چکتا ہوں. جاؤ اجازت نکل جو, ضروری نہیں ہے زیادہ نکل جو. کوئی مرزائی بھی اپنا عقیدہ ختم نبوت بیان نہیں کر سکتا. اللہ دی قسم کھا کے کہنا کوئی مرزائی اپنا عقیدہ ختم نبوت ساڈے سامنے بیان نہیں کر. کنا صاف میں 2 فکریں اپنا عقیدہ بیان کیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ نبوت نو بند کر دیتا ہے بھائی. ہن انہاں تو بعد جی او بھائی عامر صاحب جناب, اتنا بڑا عقیدہ انہوں نے بتا دیا کہ تیرا وہی عقیدہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے. ہاں لیکن اتنا ہے کہ قرآن سے ثابت نہیں. جی السلام علیکم. اور ٹاک ماسٹر جی آپ کہہ رہے تھے کہ اتارا, یہ دیکھیں آپ کا مناظر ہے. اچھا عامر نذیر صاحب, کیا آپ کا یہ گمان ہے, یہ خیال ہے, یا ایک خوش فہمی میں ہے کہ کوئی جو ہے مجھ سے بہتر عربی بول سکتا ہے؟ کیا آپ کا یہ گمان ہے کہیں؟ کس میں سے بہتر, مرزائیوں میں سے؟ کوئی بھی ہو, نہیں کوئی تو عربی. آپ کا یہ گمان ہے کہ آسکانی کو عربی نہیں آتی؟ نہیں, کس نے کہا کہ آپ کو عربی نہیں آتی؟ وہ تو یہودیوں کو بھی آتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہودیوں کو بھی آتی ہے. ٹاک ماسٹر صاحب کسی نے اپنے مباحث کی بات سنیں. آپ کا مباحث کہہ رہا ہے کہ جو عربی آپ کو آتی ہے وہ تو یہودیوں کو بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح کہا. بھائی جو عرب میں رہتے ہیں وہ ان کو آتی ہے نا, چاہے وہ یہودی ہو. اچھا عامر نذیر آپ کو نہیں معلوم, اس کا پس منظر کچھ اور ہے. السلام, ذرا ذیشان صاحب کو کوئی بات کر لیں. میں نے سوچا عامر نذیر صاحب مجھے شاید عامر نذیر صاحب کو یہ مغالطہ ہو کہ آسکانی کو شاید عربی نہیں آتی. جس طرح ان کو مغالطہ ہے. الزام لگا رہے ہیں میرے پر, کیوں الزام لگا رہے ہیں, کیا ہوا ہے؟ نہیں میں نے کہا مغالطہ ہو شاید. نہیں کوئی مغالطہ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے جی شیشان بھائی. شیشان بھائی بات کریں. ذیشان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ذیشان صاحب بات کریں. آپ کے سگنل کا کوئی مسئلہ. جمروز خان صاحب کون ہے؟ وہ یہ والی ہے کہ یو کے یہ مو پلی کہہ رہا ہوں بھائی, مو پلی. جی عامر نذیر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟
आप आइए, पहले नहीं आ रही थी दिशा। अच्छा पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अमरजीत साहब, मेरा एक सवाल था। असल में हम कल भी इस पे बहस एक कुछ लोगों के साथ हुए थे। मुझे बस इसमें थोड़ी सी आपसे रहनुमाई ये चाहिए कि मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो हदीस ये जो हदीस कोट की जाती है जिसके अंदर आज़ वसल्लम ने हज़रत उस्मान फ़ारसी के कंधे के ऊपर हाथ रख के किया था, ये मुझे बता सकते हैं कि इसमें एग्जैक्टली जो हम उनको अल्फाज बताते हैं वो तो ये हैं कि अगर के, ठीक है ना, इसमें अगर का लफ्ज़ जो होता है बड़े वाज़ेह तौर पे आता है। तो आप मुझे थोड़ी सी इसके बारे में रहनुमाई देंगे मुझे थोड़ी सी, कि नहीं, कि ये क्यों ये लोग मिर्ज़ा साहब के साथ इस चीज़ को कोट करने की कोशिश करते हैं? वो जितनी भी इस तरह की बातें होती हैं ना जो वाज़े नहीं होती हैं, उनको अपने ऊपर चस्पा करते हैं और अपने आप को उसका मिस्दाक करार देते हैं। ये तो उनकी खसलत है। लेकिन बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो हदीस किताब तफसीर में लौ कानल ईमान से शुरू होती है कि अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी होता, अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी होता तो अहले फ़ारस में से कोई शख्स या कुछ अशख़ास, कुछ लोग उसे पा लेते हैं। इसका कोई है लेना देना मिर्ज़ा साहब के साथ? कोई भी नहीं है। पहली बात यह है कि वो बात ही सिर्फ़ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बयान करने का मकसद था वो है ही सिर्फ ये कि भाई अगर ईमान ऐसे हो जाए तो फिर भी इस इलाके के लोग, ये जो आखरीन हैं या ये जो अजमी लोग हैं या फ़ारसी लोग हैं या इनके इलाके के लोग, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ारस के थे, ईरान के थे, तो इनके इलाके के लोग मतलब ऐसे ईमान में पुख्ता है। ये उनकी एक फजीलत बयान की जा रही है। लेकिन इससे सही तरह नहीं लग रहा। ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਜੋ ਘਰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕਲਦਾ नहीं। तो अमन नज़ीर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसमें है कि कुछ लोग ले आएंगे, इसका मतलब है कि वो हम जैसे लोग होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अगर ये मिसाल दूँ इसके अंदर कि मिसाल के तौर पे कि मैं पहले नमाज़ें पढ़ता था, बाद में मैंने एक नमाज़ें छोड़ दी, मुझे एहसास हुआ और मैंने उसके बाद कहा कि नहीं यार मुझे तो अल्लाह की तरफ दोबारा रजू करना है। तो क्या इस पे ये चीज़ मेरी जो ये मिसाल है कोई फिट बैठती है कि नहीं बैठती इस चीज़ के ऊपर? ले आएंगे भी उसका तर्जमा नहीं है। उसमें किसी लफ्ज़ का मतलब ये नहीं है कि ईमान सुरैया सितारे पर भी होगा तो वो ले आएंगे। मिर्ज़ाई तो बेहयाई की सारी हदें क्रॉस करते हुए ये कह रहे होते हैं यहाँ पर टिकटॉक की कई ब्रांडों पर मैंने इनको कहते हुए सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था ईमान सुरैया सितारे पर चला जाएगा, फिर वो आएगा, फिर वो ले आएंगे। कोई नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ ये झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह के नबी ने ये फरमाया नहीं है कि ईमान सुरैया सितारे पर चला जाएगा या कोई बंदा उसको ले आएगा। दोनों ही बातें नहीं है, ना जाने का ना आने का। सिर्फ इतना ही है अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी होता तो कुछ लोग उसको पा लेते। इनके लोग जो हैं अहले फ़ारस में से कुछ लोग या कोई शख्स उसको पा लेता। बस सिर्फ इतनी बात है। तो ये पाने का क्या मकसद है? मुझे मतलब अगर ईमान, हाँ, अगर ईमान इतना दूर हो जितना सुरैया सितारा ज़मीन से दूर है। सुरैया सितारा इस्तेमाल करते थे दूर का एक सितारा अपनी रहनुमाई के लिए, राह देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इतना दूर हो तो भी ये इतने जो लोग हैं इनके अहले फ़ारस के, ये उसको पा लेते। मतलब ये इनकी फजीलत है, ये इनकी खूबी है कि ये पा लेते अगर इतना भी दूर होता। बस इसमें कुछ भी नहीं है भाईजान। इसमें किसी की मतलब ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो से वो भटके हुए होंगे। और मैं ये भी इसका मतलब ले सकता हूँ ना कि इसमें से बहुत सारे लोग भटकों में भी शुमार हो सकते हैं, और अगर इतना दूर भी चला जाए फिर भी ये लोग उस चीज़ को पा लेंगे। मतलब ये कह सकता हूँ मुसलमान हो जाएंगे। यही इसका मतलब लिया जा सकता है इस चीज़ के अंदर। अहले फ़ारस की ईमान की खूबी बयान की जा रही है भाईजान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस अहले फ़ारस के लोगों की फजीलत या उनकी ईमान की सिफ्त, उनकी मजबूती, उनका तकवा, उनका मुनाकब, उनके किए जा रहे हैं बयान, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मतलब उनकी एक फजीलत कि वो इतने समझदार हैं कि वो ले आएंगे। ठीक है, बस उनके समझदारी का लेवल बयान किया जा रहा है। हाँ, बस उनकी सिफ्त बयान की जा रही है। ये बात मुस्तकबिल की थी
یہ بات مستقبل بھی کی تھی نذیر بھائی؟ نہیں بھائی، نہ یہ مستقبل کی ہے، نہ یہ ماضی کی ہے، نہ یہ حال کی ہے، محاورتاً صرف ایک بات ہے۔ اوہو، محاورے بھی چلتے ہیں آپ کے یہاں؟ اس میں کوئی مستقبل کی کوئی ایسی خبر واضح نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ اگر یہ تب ہوتی تھی، تب ہو سکتی تھی اگر اس میں یہ الفاظ ہوتے کہ ایسا وقت آئے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے کئی قرب قیامت کی خبریں دی ہیں نا، صحابہ کو بتائی ہیں، دجال آئے گا، مہدی آئیں گے، مسیح آئیں گے، وہ اس کو قتل کریں گے، وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یہ سب مستقبل کی خبریں ہیں۔ ہوگا، ایسا ہوگا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، یہ ہے خبر، ایسے ہوتی ہے خبر۔ نہیں، ایمان سریا ستارے پر ہوتا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس کو پا لیتے۔ کہاں ہے مستقبل کی خبر اس میں؟ اچھا، اس کو پا لیتے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اس وقت ستارے پر ہوتا؟ کیا مطلب؟ بھئی اس کا لفظی معنی ہے ہی نہیں، محاوروں کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اچھا، محاورے سے کیا بنتا ہے؟ محاورے کا صرف مفہوم ہوتا ہے، محاورے کا صرف مفہوم ہوتا ہے۔ مفہوم دیں، کیا ہو گیا؟ کیا مفہوم ان کا یہ ہے، مفہوم میں نے 3 دفعہ پہلے بیان، چوتھی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اہل فارس کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے، بس۔ نہیں، وہ جو کہا گیا کہ اس کی قوم میں سے وہ کچھ لوگ یا جو کچھ کہا گیا اس کا قوم میں سے کیا ہوگا؟ اس کی قوم میں سے آپ ایسا کر لیں، آپ اپنا ذرا ترجمہ پیش کیجئے گا۔ اچھا عامر نذیر صاحب، ایک بات اور بھی ہے، ان سے ان کا ترجمہ بھی پوچھیں۔ یہ جو حدیث کا اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ بھی ذرا ان لوگوں سے پوچھیں۔ کل ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے، ان کے ترجمے الگ ہیں، وہ ترجمے وہ ہے ہی نہیں جو کہ ہم جو عربی کے صحیح ترجمے ہیں نا، یہ الفاظ کھا جاتے ہیں، یہ اس کی طویلوں میں چلے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ عامر نذیر بھائی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حدیث کون سی ہے۔ کوڈ کرے نا یار اپنا۔ بھائی صاحب، بخاری کی کتاب و تفسیر میں سورہ جمعہ کی آیت کی تفسیر کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ ہاں بولے نا حدیث کون سی ہے؟ اپنا ترجمہ پیش کیجئے گا اس کے اوپر، میری گزارش۔ نہیں، میرے پاس بھی حدیث نہیں ہے، میری حدیثیں آسکانی بھائی سے پاس رکھی ہوتی ہیں۔ میرے پاس اگر جمع ہے تو میں تو بتا سکتا ہوں، لیکن عامر نذیر صاحب نے جو کچھ کہا کہ چلا جائے گا، لے کر آئیں گے، اس طرح کی چیز کوئی آپ نے نہیں رکھی ہوئی میرے پاس۔ جو ہے وہ بتائیں، جو نہیں ہے وہ نہ بتائیں۔ وہ تو عامر نذیر صاحب نے بتا دیا نا۔ نہیں، آپ بتائیں نا۔ منہم لما یلحقوا بہم، یہ تو سورہ جمعہ کی آیت ہے نا، میں حدیث تو کے اسی بارے کے میں مد میں ہے نا، اسی کی وضاحت ہے نا بھائی۔ ریموٹ میں دے جاؤ۔ میں نے یہاں پر جو میری بات سنیں اسکانی بھائی، اچھا، یہاں پر جو وضاحت ہے وہ کس کی ہے کہ وہ لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے، گویا یہ بات اس وقت کی ہے جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس پر جو حدیث ہے کہ وہ کون سے فارس کے کون تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ بھی ان کے قبیلے کے لوگ یا ان کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ستارے پر ہوگا یا ہے وہ ہوتا، سب کچھ کرتے رہے۔ لیکن اگر وہ اس سورہ جمعہ کی آیت کی تفسیر ہے تو یہاں تو سب مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ ایسا کریں کہ وہ حدیث جو ہے نا اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیں۔ اچھا، مستقبل کی بات ہو رہی ہے جبکہ اہل پارس میں سے ایک شخص موجود ہیں اور ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں نبی۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لمحہ یلحقو ہے، اس میں مجھے اس بات کا جواب یہ بات بتائی جا رہی کہ ابھی نہیں ملے ان سے، گویا ملیں گے۔ مجھے اتنے بات بتا دیجئے، جب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا تو نبی علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا؟ ہاں، وہ آپ بتائیں گے نا۔ ہاں، اہل پارس میں سے تو آپ ہے نا جی، کلیم کرتے ہیں۔ سلمان الفارسی، بالکل، الحمدللہ، میں تو اس پہ فخر کرتا ہوں نا بھائی۔ ہاں تو فخر نہ کریں نا، ہمیں بھی بتائیں۔ ہاں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جب یہ آئی بات تو پوچھا صحابہ نے کہ یہ کون ہیں؟ تب نبی علیہ السلام نے وضاحت کی اس کی، اور وضاحت کچھ یوں ہے، لیکن آپ اگر تفسیروں کو پڑھیں گے
تو اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی، ان کا جوہر یہی ہے. حدثنا قتيبة، لیکن میں وہ حدیث ہی پڑھ لوں گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال كنا جلوسا عند النبی صلوات ربی وسلامه علیہ اذا نزلت علیہ سورة الجمعہ فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء. دیکھ لیں من هؤلاء. صاحب الجلیل ابی ہریرہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے مجلس میں موجود تھے اور سورۃ الجمعہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی. جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے، پڑھ لیے فلما قرأ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم، اور وہ لوگ جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے. اس کا ترجمہ یہی ہے وآخرین منهم، اور وہ لوگ جو ابھی شامل نہیں ہوئے، ان کا ملحق نہیں ہوا ہے، جو موجود ہیں. قال رجل من هؤلاء، اللہ کے رسول یہ کون ہیں، یہ کن لوگ، کیا کون لوگ مراد ہیں. یا رسول اللہ فلم يراجعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى سأله مرة او مرتين او ثلاثا. راوی کو بھی یاد نہیں ہے، ایک یا دو یا تین مرتبہ غالباً نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا. تب نبی علیہ السلام نے قال وفینا سلمان الفارسی، سلمان الفارسی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس میں. قال فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا نبی علیہ السلام نے. ثم قال، اس کے بعد فرمایا لو كان الایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا پر ہو، اگر عند ثریا اس کے پاس، اچھا لنالہ رجال من هؤلاء او رجل، تو ان میں سے ایک یا ایک سے زائد لوگ ایمان کو پالیں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے. بس اتنی سی بات ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، یہ یہاں پر جو ہے دین اور شریعت اور اسلام محصور ہو کر نہیں رہ جائے گا، اور بھی لوگ آنے والے ہیں. اس میں یہ خوشخبری ہے، یہ پیش گوئی ہے، اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. غیر عرب بھی، مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، اسی طرح پھیلتا جائے گا. غیر عرب بھی ایمان لائیں گے اور وہ اسلام قبول کریں گے جس طرح سے آپ لوگوں نے قبول کیا ہے. یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ پیشگوئی اس میں. جی بتائیے آپ. ماسٹر صاحب ہیں، ماسٹر صاحب جی میری آواز میں اصل میں نا وہ آیت پڑھ رہا تھا وآخرین منهم لما يلحقوا. ہاں اچھی بات، ٹھیک ہے، اچھی بات. یہ کس سے ملنے کی بات ہو رہی ہے؟ اور دوسرے ایک منٹ دے دیجئے مجھے 1 منٹ دیجئے، کسی کو کچھ دینا ہے. میں نے کر رہی ہے کافی دن ہو گیا تو ان کو کچھ دینے گے نا میرے بھائی. 1 منٹ. كيف الحال؟ تمام؟ اللہ خلیک. اچھا جی بولیں. یہ جو وآخرین منہم کی بات ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے. یہ ان سے نہیں ملے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بھائی، اور دوسروں میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے، ایسا کوئی ترجمہ نہیں ہے اس کا. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ کہا ہے، آج بھی کہہ دوں گا، لیکن آپ مانیں گے نہیں. کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ وہ بات یہ ترجمہ میں نے اپنے کسی مفسر سے نہیں دیا، یہ 360 سے لے کر دے رہا ہوں. میری بات تو سن لیجئے نا، میری بات سن لیجئے. میں نے یہ بات کئی مرتبہ کی ہے آپ سے، پرسنل بھی کی ہے، کان میں بھی کی ہے، علی لسان بھی کیا ہے کہ
ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. غلط بات ہے، ایسا ہے نہیں، ترجمہ ہے نہیں. دیکھو لکھا ہوگا، سمجھ رہے؟ ترجمہ یہ ہے ہی نہیں، بلکہ ترجمہ یہ ہے ان اللہ. اس کی بات کریں. ایک منٹ نا ماسٹر جی، ایسا مت کیجئے نا. ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو خود چاہتا ہے. من یشاء، جو خود چاہتا ہے، زبردستی نہیں. ہدیناہ النجدین، دو ہیں، اما شاکرن و اما کفورا. ٹھیک ہے، شکر کرنے والا بننا چاہتے تب بھی ٹھیک، کفر کرنا چاہتے ہو تب بھی ٹھیک. لا اکراہ، زبردستی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے، فرعون کو ہدایت نہیں دیا. ابھی فرعون کی کیا غلطی ہے بھائی؟ بعین ہی یہ جو ترجمہ کیا گیا غلط ہے بھائی جان، غلط ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. غلط، یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. بلکہ احد کا مطلب ہے تنہا، یکتا. ایک کے لیے تو واحد ہے. میرے محترم بھائی، عربی جو زبان ہے نا، جب تک بات سن لیجئے، یہ جو قرآن کی لینگویج ہے عربی ہے، لیکن جب تک وہ آپ پڑھے گا نہیں، عربی کا باپ بھی اس کو نہیں سمجھے گا. چند باتیں تو سمجھے گا، آپ سمجھ رہے؟ تو آپ اس کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ جو صحابہ نے سمجھا، جو مفسرین نے آپ کو بتایا. قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اللہ تو ایک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ غلط ہے. بلکہ یہاں احد کا مطلب ہے یکتا، تنہا، ایک نہیں. اسی طرح جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا بھائی، یہ ترجمہ غلط ہے. بلکہ وآخرین منہم، اچھا ٹھیک ہے، وآخرین، ٹھیک ہے. جی. ایک منٹ روک لیں. ذیشان بھائی، آپ سمجھنا چاہتے تھے نا، آپ ہم دونوں کی گفتگو جو ہے وہ سنتے جائیے. عسکری بھائی، ہواللہ جی باسا فی امیون رسولہ ومنہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. ایک منٹ ٹھہر جائے عسکری بھائی، صبر کریں ذرا. غلط پڑھ رہے نا، غلط پڑھ رہے. یار غلط پڑھ رہی نا، آپ غلط سن لیں نا. آپ تو خود کہتے ہیں کہ جو جس کو پڑھنے میں مشکل ہے اس کے دوہرا اجر ہے اس کے لیے، تو مجھے دوہرا اجر لینے دیں. آپ جو بات ہو رہی ہے اس پر جو ہے توجہ دیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کیا ہو رہا ہے کہ رسول جو پیدا ہوئے امیون میں سے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں آیات کو، اور ان کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اور ان کو پڑھا رہے ہیں کتاب کے بارے میں اور حکمت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور وہ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، یعنی کہ جو ابھی جن کے اوپر ابھی انہوں نے آیات نہیں سنائی ہیں اور کتاب و حکمت کی بات ابھی ان کو نہیں بتائی ہے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آخرین بھی ہیں جو ابھی تک ملے نہیں. اور پھر اسی ضمن میں یہ حدیث ہے، کیا نام ہے فارسی کے بارے میں. تو اس فارسی کے بارے میں جو، یار وہ اس کا نام مجھے پورا بتا دیں، غلط نہ ہو جاؤں. سلمان الفارسی، سلمان فارسی. اچھا، سلمان فارسی جو تھے، یہ پھر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سریا پر ہوتا علم تو وہ لے آتے، مگر یہ جو آیت ہے جس کے ضمن میں یہ حدیث ہے، جس کی تشریح میں یہ حدیث ہے، اس آیت میں مستقبل کا ذکر ہو رہا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. اور مستقبل کے ذکر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان فارسی میں سے کی قوم میں سے کچھ ایک آدمی، رجلن، یا پھر بہت سے آدمی جو ہے وہ سریا پر جو ایمان ہوتا وہ لے آئیں گے. ہوتا آپ کرتے جائیں، مگر جب مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہوگا ہی آئے گا. تو ابھی میں نے تو اپنی پوری بات کر دی ہے، ذیشان بھائی بھی سن رہے ہیں. اب آپ اپنے جتنے پینچر لگانے ہیں لگائیں جی. بہت شکریہ. نہیں، پنچر نہیں لگائیں گے. دیکھیں، جب قرآن مجید میں آپ پینچر لگا رہے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے بعد جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ ابھی 360 میں تو یہی ترجمہ ہے. آپ کا ترجمہ میں کیوں مانوں بھائی؟ یہ عالم نہیں ہے جس نے لکھا ہوا ہے. نہیں، یہ عالم نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یقین کیجئے نا،
ये 360 तो वाला फिर वो आलम क्या नहीं। कहते हैं कि वो एमडीओ के बुगज में आप हर चीज चेंज करते जाएं। अरे भाई मैं आपके बॉस पे क्यों चेंज करूंगा? देखें इसका पिछला ला इसकी हौला पिछली वला आयत जो है, इसकी अच्छा पिछली मुझे थोड़ी आयत सी जो बात है, तो करने दीजिए ना। चले आप बात नहीं करें, आप मैं फिर पिछली बात आयत कर के लेता साथ इसको पढ़ें। पिछली आयत का जो सियाको सुबान से बनता है उस हिसाब से आगे बात करें। ताल हबीबी, एक मिनट भाई। तो इसका मतलब तो अमर नज़ीर साहब ये हुआ ना कि ये जो प्रॉब्लम्स अरबी की पाई जा रही है ये फिर हमारे पाको हिंद के अंदर, तो फिर इसका तो बहुत बड़ा, ये तो एक मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर तुम्हारे पाको हिंद के अंदर तो इस चीज़ का। किस चीज का? ये जो अरबी के अल्फाज हैं जिसका मतलब कि तर्जमे हम लोग अपनी मर्जी के कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि इसमें तो फिर हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाई जा रही है फिर तो पाको हिंद देखें के अंदर। जीशान भाई, मैं ना उस तरफ हूँ ना उस तरफ की बात करूंगा ना इस तरफ की बात करूंगा, लेकिन होता यूं है कि ये आयात को जो है ना, जिस तरह भी आसकानी भाई जो काम कर रहे हैं, यही काम दोनों तरफ से होता है। ये करते अच्छा हैं। भाई उन्होंने सुन कुरान तो को मोल लीजिए। की नाच समझा हुआ, जिधर मर्जी अपनी तरफ मोल लो बस। ओ भाई मुझे भी तो मौका दीजिए ना, मुझे भी तो आपने देखिए आपने जुबानी कलामी बातें की और उसको जुबानी समझाने कलामी नहीं की, की मैंने आपको पिछली आयत दी है, तो पिछली आयत का भी साथ तर्जुमा करके और पिछली आयत को इसके साथ मिलाएं। फाकिरीना मिनहुम लम्मा यलकुले, इसके साथ पिछली आयत मिलाएं। वो भी मिला लेते हैं, लेकिन मौका देंगे तो मिलाएंगे ना। आपने आयत का इशारा दिया, पढ़ा भी है, लेकिन बात यह है कि मौका आप दो। मौका है? हाँ जी, मैं अभी बोलने की इजाजत है आप? मौका दे दूं। अच्छा देखिए, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीना रसूलन मिनहुम, रसूल उम्मियों में से थे, यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर यानी उनके सामने अल्लाह पाक की आयतें पढ़ रहे हैं। तो सलमान फारसी भी मौजूद है, सामने पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? इसका जवाब दो। पढ़ रहे हैं आगे। इसका जवाब दो ना भाई। एक ही बात है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, जरा ऊंचा बोलिए। यार मेरी आवाज नहीं आ रही है। जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, कट रही है। अच्छा चले आप आगे चलें। अब चलें आप आगे आप चलें। इतना बता दीजिए कि हुवल्लज़ी, एक मिनट मुझे दे दीजिए, एक मिनट। जी मास्टर साहब, हुवल्लज़ी बअस उम्मिय्यीना रसूलन। अब ये कौन है? हुआ वही है वो जिस रसूल भेजा। वो कौन? वो अल्लाह। अब अल्लाह का नाम नहीं है, अल्लाह वो बनी। अच्छा, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू फी ज़लालिम मुबीन। अब मुझे आप बता दीजिए, हाँ अल्लाह पाक कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह रसूल भेजा किन में? उम्मीयून में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तज़किया हो रहा है और जो सिखाया जा रहा है सिर्फ उम्मियों को, सिर्फ उम्मियों को तो नहीं है। वो यमन के लोग भी आ रहे हैं, शाम के, इराक के भी लोग आ रहे हैं, वो तो उम्मी ही हैं। भाई जिस तरह से आमिर नज़ीर साहब ने कहा कि हम लोगों के अलग अलग वो फजीलत बयान हुई हैं, ये ख़ास फजीलत है उम्मियों की कि उन्हीं में से नबी आया, लेकिन हमारी भी फजीलत आई ना, वो आखरीन मिनहुम। लेकिन इन चीज़ों को आप लोग ऐसा जो है वो क्या हलाल शरबत समझ के पता नहीं वो उसको पी जाते। इनमें जो ये असल बात है, क्या है असल बात ये कि उम्मियों को पढ़ के सुनाया जा रहा है, गैर उम्मियों को नहीं पढ़ के सुनाया जा रहा, जबकि सलमान फारसी मौजूद है। सलमान फारसी को भी तो पढ़ के सुनाया जा रहा है, उसकी भी तो तज़किया हो रही है। और उम्मी तो कहते हैं कुरैश के उस जो जिन पर किताब नहीं उतरा, गैर कुरैश को नहीं कहा, गैर क्या नाम है जिनके पास किताब थी उनको नहीं कहा उम्मी, यानी
हजरत ईसा के मानने वालों, हजरत मूसा के उनको तो भी पढ़ के सुनाया जा रहा है, उनके सामने भी तो दावत तबलीग की जा रही है। लेकिन यहाँ खास उम्मियों का जिक्र करके उनकी फजीलत आ गई। हालांकि पढ़ के तो सबको सुनाया जा रहा है मेरे भाई, पढ़ के तो सबको सुनाया जा रहा है। और आप इससे बढ़कर देखें कि सलमान अल फारसी खुद मौजूद हैं, उनको भी पढ़ के सुनाया जा रहा है। अब बताओ, एक फजीलत है कि देखो तुम लोग लेकर आए हो, बड़ी फजीलत है तुम्हारी, तुम ही में से हो, तुम लोग ईमान लेकर आए हो। ये लोग देखो, ये जो सामने बैठे हुए, अब जाहिर बात है मास्टर का नाम लेता, आस्कानी का नाम लेता, वो तो इतना सारा जो है नबी अलैहिस्सलाम को जो नहीं बताया गया, एक बात इजमाली बता दी गई कि और लोग भी ईमान लेकर आएंगे, तुम लोगों ने जैसे ईमान लाया उनकी भी फजीलत होगी जिस तरह तुम लोग की फजीलत है। बस इतनी सी बात है, वो सलाम, उससे ऊपर कुछ नहीं। जी अब बोले मास्टर चले गए? नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ आस्कानी भाई जी, कि आप कितने मजबूर हैं कि आप इधर उधर की बातें करके तो आप उल्लू यानी सीधा कर रहे हैं कि अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये जो है ना वल्लज़ी बासा फिल उम्मियून रसूला, ये तो बताया जा रहा है कि वो कौन सा रसूल है जिसको अल्लाह ने बनाया। वल्लज़ी वो है जो पिछली आयतों में मौजूद है। ये अल्लाह की बात ही हो रही है ज़ाहिर ठीक है कि आप में से उन लोगों को बनाया और उन्हीं को वो इल्म दे रहे हैं और ये ज़की कर रहे हैं और ये आलम कर रहे हैं। ठीक है, उम्मी कौन है? उम्मी कौन है? उम्मी सारे ही हैं। नहीं, यही तो बात है ना। देखें मेरी बात सुनो, वल्लज़ी बासा फी उम्मियून रसूल। अब ये वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीन, इसका तर्जुमा तो बिल्कुल साफ है कि वही है जिसने उम्मियों में से यानी तुम में से रसूल भेजा। इसमें कुछ शक है आपको? आवाज बंद हो गई है। सुन रहा हूँ आपकी, आप बात करें। हाँ, तो ये उम्मियों की बात हो रही है कि भी उनमें हमने रसूल भेजा और कर क्या रहे हैं कि वो उम्मियों से क्या मुराद है मास्टर जी? मैंने आपसे पूछा उम्मियों से क्या मुराद है? आप क्या मुराद लेते हैं? अभी मैंने तो आपको बता दिया, मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ। मैं उम्मियों का तर्जुमा करूंगा भाई, आपको समझ ही नहीं आएगी, फिर आप वो एक और सिलसिला लेकर बैठ जाएंगे। मैं बता देता हूँ उम्मियों का। नहीं, कोई बात नहीं, तो आप बताइए। किताब नहीं है, जो अहले किताब नहीं है, जिन पर किताब नाज़िल नहीं हुई, उनको उम्मियों कहते हैं। हाँ ठीक, वो सब है ना, वो सब है। चलो ठीक है, अगर आप इस पे राजी तो आगे चलें। हाँ, ठीक है ना? नहीं, वो सब है उम्मियों। वो ये बता रहे, नहीं मेरी बात सुन लेना कि ये बताया जा रहा है कि वो उम्मियों में रसूल भेजे गए और वो उनको यानी उम्मियों को ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी बताया जा रहा है कि हमने रसूल कहाँ पर भेजा है। फिर ये है कि आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। आप आगे मत जाए ना, आगे मत जाए मास्टर जी, आगे मत जाए। उम्मियून कौन है? असल मसला ही आ गया है। तो आप बताइए ना, उम्मियून कौन है भाई? कितनी दफा बताऊं? जिन पर किताब नाज़िल नहीं बताया ना जी। जिन पर किताब नाज़िल नहीं हुई उनको उम्मीयीन कहते हैं। वो कौन है वो तो बताइए कम से कम। यही जो बुत परस्त थे मक्का के। हाँ, मक्का के बुत परस्त। हम तो कहीं मुराद नहीं ना उसमें। नहीं, हमें तो मुखातब नहीं किया जा रहा फिलहाल। हाँ बस ठीक है, तो वही तो मैंने बात पहले की कि भाई अहले किताब को पढ़ के सुनाया जा रहा था या नहीं, और गैर अरब को पढ़ के सुनाया जा रहा था या नहीं? जी आस्कानी भाई, ठहर जाए। नहीं, आप इस तरह मिक्स नहीं कर सकते। ये आयत जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको तज़किया करें, ये उम्मीयीन की बात है हो रही है, क्योंकि साथ लेकिन उम्मीयीन में बेटा हुआ है ना एक जो है सलमान फारसी, जो गैर उम्मी है भाई। उसके अलावा क्रिश्चियन भी मौजूद हैं और यहूदिया भी मौजूद है, लेकिन उनकी बात ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही जब उनको पढ़ के सुनाया जा रहा है? भाई उनको नहीं पढ़ के सुनाया जा रहा, ये जो सुनाया जा रहा है इस आयत में
उम्मीन ही मुराद हैं, क्योंकि वो मिनहुम। सलमान अल फारसी मुराद नहीं है, वो मौजूद नहीं है। देखो देखें मेरी बात सुने, वल्ला जी बासा सलमान अल फारसी वहाँ है या नहीं, इतना बताइए। पहले मेरी बात सुन लें। इतना बोलने में क्या मुश्किल है कि वो मौजूद है, वो सुन रहे हैं, उनको भी पढ़ के क्या मुश्किल है, बताइए। मेरी बात सुन लेना जी। आशकानी भाई, सुलेमान फारसी उम्मी नहीं थे, सुने। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उम्मी तो नहीं थे, लेकिन वो उनके सामने भी पढ़ के सुनाया जा रहा है, उनको भी पढ़ का, उनकी भी तज़किया हो रही है कि नहीं? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अभी आपको ना समझने वाली वो लग गई है। वल्ला जी देखें, वल्ला जी बासा फिल उम्मियूना रसूलम मिनहुम, ये उम्मियून में से मिनहुम में है रसूल उनमें से है, रसूल सिर्फ रसूल उनमें से है। हाँ जी। रसूल किन में से है? हम में से नहीं, उनमें से है। सुन रहे, आगे भी सुने ना, आगे भी सुने, हाँ। आगे भी सुने। यहाँ पर जो मिनहुम के बाद ये है कि यतलू अलैहिम आयाते ही, हाँ। वही उम्मियून है जिस पर आयात पढ़ी जा रही है। मानता हूँ, लेकिन उम्मियून के माँ सिवा, उम्मियून के माँ सिवा भी लोग वहाँ सुन रहे हैं, उनको पढ़ के सुनाया जा रहा है या नहीं, ये बताओ। भाई वहाँ पर सारे लोग मौजूद थे, लेकिन इस आयत में जो मुखातिब हैं वो उम्मीयीन हैं। ये वो लोग नहीं है जो अहले किताब हैं। यहाँ सलमान फारसी भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस आयत में। हाँ। अच्छा, तो सलमान जो ईमान लाए, तज़किया किया, सारा कुछ किया, जब वो मुरादी नहीं थे उनको कह देते कि भाई आप रुक जाओ। अब एक मिनट नहीं, मेरी जुमला पूरा करने दें, जुमला पूरा होने दें। मास्टर जी, भूल जाऊंगा। अब सलमान फारसी को नबी अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे ना कि देखो ये आपके लिए नहीं है खास, अब मैं तज़किया कर रहा हूँ इनकिबास। अब आप सब्र कीजिए, बाद में मिर्जा जी आएंगे। वो मैंने हंसे नहीं, जब वो पूरे आलम के लिए रसूल भेजे गए हैं तो उनको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वो अहले किताब यानी गैर उम्मी को भी ये कहें कि मैं तुम्हारे लिए ये वाली आयत नहीं आ रही। मुख्तलिफ आयतें हैं, मुख्तलिफ लोगों के लिए हैं। और फिर ये भी देखें, व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लाल मुबीन, क्या आप समझते हैं कि अहले किताब ज़लाल मुबीन में थे जब तक वो मुसलमान नहीं हुए? देखें, जब तक वो 100% जब इस्लाम आया तो आया, उससे पहले वो ज़लाल मुबीन में नहीं थे, क्योंकि वो 100% थे, 100%। वो खुदाया मैं कह रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, जब कैसे नहीं हो सकता? मैं आपको बताता हूँ ना, वो अहले किताब थे। अगर जब वो इस्लाम आया ही नहीं था तो क्या वो ज़लाल मुबीन में थे? हाँ, ये तो क्योंकि उन्होंने बदल डाली थी ना, आपका अपना फिर वो शरीयत को शरीयत को बदल दिया। देखें, अभी कुरान मजीद मौजूद है, आखिरी नबी आया, लेकिन आप ज़लाल मुबीन में हैं। ऐसे ही वो मानने वाले तो थे, लेकिन आपकी तरह कुरान मौजूद है। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ 25-26 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन कुली गुमराही में हैं। आशकानी भाई, सिद्क़े दिल से कह रहा हूँ, आप यहाँ पर गलत हैं। चले, मैं माजरत कर लेता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। आज इस्तिखारा कर लेता हूँ इस बात के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे मैं आपके इस्तिखारे को नहीं मानता। वह आखिरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम का जो साफ मतलब है वो यही है कि वो आखिरीन जो अभी तक उनसे नहीं मिले। अब यही बात तो लोगों को समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब है, इसलिए सवाल किया गया। मेरी बात सुने, लाहौल बाद में पढ़िएगा, मैं शैतान नहीं हूँ। भैया शैतान के लिए पढ़ा जाता है क्या? लोगों के ज़हन में ये सवाल आया कि वो कौन है जिनसे अभी तक वो नहीं मिले, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात पढ़ते थे और तज़किया करते थे वो उनसे अभी तक नहीं मिले। वो आखिरीन कौन है, ये सवाल हुआ था। इस सवाल के जवाब में ये हदीस आई है कि वो सुलेमान फारसी के कंधे पर हाथ रख के वो कहेंगे कि उन्होंने कहा कि ये इसकी कौम में से कोई एक रजल या ज़्यादा लोग जो है वो सुरैया वाले ईमान को पा लेंगे। तो ये मुस्तकबिल की बात है, आप इसको माने या ना माने। ज़ीशान भाई, मैंने जो जितनी बात करनी थी वो कर ली है, अब फैसला आपके हाथ में है। इधर जाएं या उधर जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी
मेरी बात आप अगर खुद नहीं आ रहे तो दूसरों का सबब ना बने ना भाईजान। आप दूसरे किया था, और अकेले आप अगर जवाब देंगे तो ये एक तरफा की बात होगी, दूसरी तरफ की बात मैंने कर दी। अब फैसला उनके हाथ में है कि वो क्या समझते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि वो डिस्क्लोज करें कि मैं क्या समझाऊं, वो अपने तौर पर जो समझेंगे वो उसमें आज़ाद हैं। देखिए मेरी बात तो सुन लेना, आपने अपनी बात की तबलीग की, सारा कुछ किया जो कि आपको हक नहीं था करने का, शरअन भी और कानूनन भी।